everyone. A warm welcome to all the participants, respected speakers, faculty members. We are delighted to have you all here in the Faculty Development Program sponsored by PM Usha Soft Component and organized by the Department of Environmental Biology, APSU Riva. Today, we are moving ahead toward the fourth day of Enriching FDP Journey. The theme of the day is focused on research skill and scientific tool. On our very first session today, we are privileged to have with us distinguished academician, researcher, practitioner, Dr. Ashutosh Dwivedi sir. And Dr. Ashutosh Dwivedi sir is an assistant professor and in charge assistant superintendent in Government Ayurveda College and Hospital, Riva. He has contributed immensely to the field of Ayurveda and science. Dr. Dwivedi has to his credit 21 research articles published in reputed index international journals and national journals and has made more than 30 presentations in both national and international conferences. With such an inspiring academic and research profile, Dr. Dwivedi continues to serve as guiding force for young scholars and researchers. So, to welcome our esteemed speaker, I would request Dr. Arvind Tripathi sir to welcome our first session speaker. Thank you so much, sir. Now we are moving to our first session. We are delighted to hear Dr. Dwivedi. Respected Professor Atul Tiwari sir, who is not physically present here but mentally and spiritually, I think he is here. Head of department of this prestigious biotechnology department. Dr. Dipali ma'am, my friend Dr. Arvind sir, other faculty members and dear students. Basically, I am an Ayurvedic scholar. Acharya Charak said that Kripsano Hiloko Buddhimatam Acharya Shatruscha Abuddhimatam. कहने का मतलब है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए सारा संसार जो है वो गुरु है। वो बड़े से भी सीखता है, छोटे से भी सीखता है, जड़ से भी सीखता है, चेतन से भी सीखता है। और शत्रुश्च अबुद्धिमता, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा पगला है, बेवकूफ है या सो जो हम लोग उपमाएं देते हैं, उसके लिए सारा संसार जो है वो शत्रु के शत्रु है। उसको लगता है कि ये सब मेरे शत्रु हैं, सब मेरे दुश्मन हैं, सब मेरे कॉम्पिटिटर हैं, सब मेरे अगेंस्ट हैं। इसलिए पहले ही आचार्य चरक ने कह दिया कि यदि आपको सीखना है तो छोटा बनना पड़ेगा। करंट जो है ना, जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, चल रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो करंट ऑल्सो फ्लोज टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल फ्रॉम हायर पोटेंशियल। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये धारा जाती है। ठीक वैसे ही ज्ञान भी, यदि आप ऐसे हैं तो ज्ञान आएगा, ऐसे है तो ज्ञान चला जाएगा। सो आई एम फीलिंग वेरी मच फॉर्चुनेट to have a opportunity to say something in front of you, because it is not only the faculty development program of the for the faculty of this APS University, it is also for me, because being Ayurveda scholar, I got many times opportunity to deliver my views or thoughts in front of Ayurvedic students or scholars or faculty. But beyond my fraternity,
first time I am going to say something in front of the real research scholars. तो आप सबको मालूम है कि आयुर्वेदा हर्बल मेडिसिन करंट सिनेरियो एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ये जो है मुझे टाइटल दिया गया है, जो थीम है रिसर्च स्किल्स एंड साइंटिफिक टूल्स। अच्छा, तो चलिए, ये पिक्चर जो है लगभग सबको मालूम होगी, है ना? देखा है आपने? आनंद मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग है, बाबू मोशाय हम सब जो है वो जिंदगी के इस रंगमंच की कठपुतलियां है, इसकी डोर किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो हम सब जो है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किसी को अपना रोल सही टाइम पर पता चल जाता है, किसी को थोड़ा भटकने के बाद, इधर उधर घूमने फिरने के बाद पता चलता है। जिसे जितना जल्दी अपना रोल, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पता चल जाता है, वो उतना ही अपने जीवन को जल्दी सार्थक बना लेता है। इसलिए जो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तो थोड़ा सा आयुर्वेद समझेंगे, थोड़ा आयुर्वेद के अगल बगल की चीजें जो कि हमें रिसर्च और वर्तमान परिदृश्य में बात करनी है, और करंट सिनेरियो में आयुर्वेद क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या इसके पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर में क्या हमें एडवांटेज है, हम अपने देश के समाज के निर्माण में और अपने स्वयं के स्वास्थ्य के निर्माण में इसके सिद्धांतों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो अपने अपने रोल को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए, रिकॉल कीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च कच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सोच्य। मतलब आयुर्वेद क्या है? हम हित आयु की बात करते हैं। हम अच्छा खा रहे हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, दैट इज फॉर मी। लेकिन जब हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो दैट इज नॉट ओनली फॉर मी, दैट इज ऑल्सो फॉर अदर्स और आवर पेरिफेरी। हमारे अगल बगल रहने वाले लोग हमसे खुश हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे प्रति सपोर्टिव है, यह भी हमारे लाइफ को डायरेक्ट जो है वो अफेक्ट करता है। आप देखिए, यदि क्लासरूम में हेल्दी एनवायरनमेंट है मेरे लिए, तो मुझे टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातें भी पसंद आएंगी। इसलिए आयुर्वेद जो है वो 4 पार्ट में बात करता है, हित आयु, अहित आयु। हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लाइफ को आगे ले जाएंगे तो हेल्थ के साथ जो है जीवन बहुत अच्छा चलता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हेल्दी जो इंडिविजुअल है वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर सकता है, और अगर नहीं किया तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, हमें बीमारी हो सकती है। ऐसे समय में हम जो है अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, अपने काम के लिए बर्डन होगा, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी और देश के लिए भी हम बर्डन बनते हैं। और इसलिए हित और अहित आयु, और आगे कह रहे हैं सुख आयु और दुख आयु। कभी कभी क्या लगता है कि सुख जो है वो क्या है, तो बड़ी मजेदार बात है। आचार्यों ने कहा अनुकूल वेदनीयम सुखम, वेदना कहा है, मीन्स सुख इज ऑल्सो अ पेनफुल प्रोसेस। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, दुनिया का सबसे कष्टतम जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है, सबसे अधिक कष्ट सहती है, लेकिन उसे अपनी उस वेदना में भी क्या मिलता है? सुख मिलता है, उसे अच्छा फील होता है। हम कष्ट में हैं, लेकिन यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो हम थोड़ा प्लीजेंट फील करते हैं कि नहीं करते? इसलिए वो सुख है, इसलिए कहा सुख आयु। तो सुख आयु केवल मेरे खुद के करने के कारण जो दूसरे मुझे दुआ मिलती है तो मेरी सुख आयु बढ़ती है। मुझे बददुआ मिलती है, मैंने गलत काम किया, किसी को परेशान किया। अपने यहाँ तो सनातन परंपरा में पुराने समय में सब मानते थे, श्राप दे दिया, जल छिड़का श्राप दे दिया, व्हाट इज श्राप? वो दैट बददुआ आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को अफेक्ट करने वाली है। इसलिए आयुर्वेद का है, WHO कहता है हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इट मीन्स कि केवल डिजीज का ना होना जो है वो हेल्दी होने के लक्षण नहीं है। इसलिए क्या कहा कि मेंटली
पड़ेगा। हम यहाँ पर बैठे हैं, जबरदस्ती बैठे हैं, सर मैडम ने कह दिया लेक्चर सुनना है, अच्छा रहे खराब रहे, अटेंडेंस भी लग सकती है, फैकल्टीज को भी सैलरी मिलती है, अब्सेंट हुए तो शायद कट भी जाए, इसलिए जबरदस्ती बैठा दिया और प्रेजेंट नहीं फील कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो फिजिकली तो वी आर फिट, लेकिन मेंटली हमारा माइंड जो है वो कहाँ घूम रहा है, वॉर 2 देखने गया है। तो इसलिए फिजिकली एंड देन मेंटली फिट, एंड आफ्टर दैट सोशली फिट। हम फिजिकली फिट, मेंटली फिट, लेकिन अब हम यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर करने के साथ ही खराब लगना शुरू हो जाए, मान लो बाई चांस। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, खुला खुला, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे, एनवायरनमेंट ठीक है, कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। मान लो बाई चांस किसी डिपार्टमेंट में घुसने में मुझे अच्छा फील ना लगे, मुझे कलीग जो है वो हमेशा टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, मेरे साथ वाले मुझे स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा मुझे तंग करते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो कैसा लगेगा? हमारी सोशल हेल्थ अफेक्ट करने लगी। इसी को आगे कहते हैं, इसके आगे कहते हैं आचार्य सुश्रुत ने इसको रिजेंबल किया। आचार्य सुश्रुत ने एक्चुअली नहीं कहा, आचार्य सुश्रुत को हजारों साल पहले कह दिया। समदोषः समाग्निश्चः समधातु मूलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि दी थी। वो सरल भाषा में शरीर की सभी प्रकार की जो फिजियोलॉजी है वो इक्विलिब्रियम में रहे, शरीर में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं रहे, सब बैलेंस रहे, हाइट हेल्थ सब बढ़िया, वेट हमारी सब ठीक रहे। और इसके बाद क्या कहा? प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, जो हमारा आत्मा है और उसके साथ जो इंद्रिय और मन है, अधिष्ठान है, मन ठीक नहीं है तो वी आर नॉट हेल्दी। मैं नहीं कह रहा, आचार्य सुश्रुत ने कह दिया 1500 ईसा पूर्व। और आप सोचिए WHO ने अभी हाल में सब जोड़ा, नहीं तो क्या पहले जो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी केवल फिजिकल फिटनेस और बहुत ज्यादा होता था तो मेंटल फिटनेस तक की बात करते थे, अब जाके वो स्पिरिचुअल वेलबींग की बात करने लगे। लोग आश्चर्य है, खूब पैसा कमा लिया, हेल्दी भी रह लिए, सब सारा वैभव संपन्न होने के बाद भी जो है शांति नहीं, नींद नहीं आ रही, रात में डिस्टर्ब है और चिंता सताई जा रही है। अपने पास सब कुछ है, मेरे पास जो है वो $1 बिलियन है, मेरे पास नहीं है, मतलब सपोज दैट आई एम हैविंग $1 बिलियन, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास $2 बिलियन है। तो हे भगवान, मेरा 1 बिलियन भी खत्म कर दो और सामने वाले का 2 बिलियन खत्म कर दो, है ना? मेरी एक आंख फोड़ दो, सामने वाले की। तो हम फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, बट स्पिरिचुअली नॉट फिट। तो हमें क्या बनना है? इसलिए आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। हम लोग जो है वो स्वास्थ्य के समग्र जो आयाम है उसकी चिंता करते हैं, और पर्सनैलिटी भी यही है। हम किसी को क्लासरूम में अपीयर होने के साथ में वहीं से देखते हैं, उसका वे ऑफ जो एक्सप्रेशन है, उसका जो गेट है, चलना फिरना है, बॉडी लैंग्वेज है, वे ऑफ स्पीच है, उसका जेस्चर और वो जो उसने कपड़े पहन रखे, सब बाहर से देखते हैं ना। दैट इज ओनली फिजिकल डायमेंशन। फिर वो हमसे बात करता है, पोलाइटली बात करता है, थोड़ा सा ठीक से रहता है, उसकी बातों को सुनने में ही मजा आ जाता है। हम थके रहते हैं कि वो दोस्त हमारा कब मिलेगा हमें। इसका मतलब उसका मेंटल डायमेंशन और सोशल डायमेंशन अच्छा है, फिर वो हमेशा दूसरे के अच्छे की ही बात करता है। तो मतलब ऐसे लोगों के बीच में हमें रहना पसंद होती है। आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे बहुत बड़े बड़े कैंप्स होते हैं ना, कई बहुत सारे पैसे खर्च करके लोग जाते हैं, लेकिन उन्हीं सब विषयों पर अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सस्ते में निपट गए। नहीं, देखिए आप, जो इसके पहले हमने स्लाइड दिखाई थी, इसमें क्या है? पर्सोना जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। पर्सोना वो मास्क है जिसको एक्टर्स लोग पहना करते थे, जब प्ले वगैरह होता था ना, उसमें जो मास्क वगैरह लगाते थे उसको पर्सोना बोलते थे, उसी से वो पर्सनालिटी बना। पर इसका मतलब ये है कि हम सब जो है उसी प्रकार के पर्सोना के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि हम लोग वेरियस रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, तो हमारा एक निश्चित ऑब्जेक्ट होता है।
लक्ष्य, बिना लक्ष्य के अपने व्यक्तित्व को निखारा नहीं जा सकता। इसलिए आयुर्वेद का भी प्रयोजन जानना जरूरी है। तो हम सब जानते हैं कि प्रयोजनम चास्ति, किसी भी हेल्थ साइंस, केवल आयुर्वेद में किसी भी हेल्थ साइंस के दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे। अगर हम स्वस्थ हैं, बीमार होना चाहते हैं क्या? नहीं होना चाहते। और अगर बीमार हो गए तो ठीक होना चाहते हैं, और ठीक हो गए तो दोबारा बीमार नहीं पड़ना चाहते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, उसका मूल आरोग्य है। चिकित्सा के 4 पाद कहे हैं और 16 गुण बताए हैं। आप देखिए, किसी भी आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे तो सबसे पहले आप किससे मिलने गए हैं? डॉक्टर से मिलने गए हैं। डॉक्टर क्या है? उसका असिस्टेंट होता है ना, होता है ना, जो पर्ची काटता है, या फिर कोई एक अंदर नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो बीपी ले लेता है, वो वेट ले लेता है, और फिर एक पर्चे में लिख करके डॉक्टर के पास भेजता है। तो एक होता है डॉक्टर, दूसरा होता है वो पैरामेडिकल स्टाफ जिसको उपचारक कहा जाता था, तीसरा होता है मेडिसिन, है ना। डॉक्टर पर्चे में दवाई लिखता है, कहाँ जाते हैं? स्टोर में जाते हैं, मेडिसिन परचेज करते हैं। और उसके बाद चौथा कंपोनेंट वो स्वयं है जो डॉक्टर के पास गया था, मतलब रोगी। तो भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय, बिना रोगी के डॉक्टर का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? और डॉक्टर बैठा रह जाएगा, रोगी नहीं आएगा तो क्या मतलब? इसलिए ये 4 कंपोनेंट हैं, उनके अलग अलग गुण बताए। दक्षः तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, जैसे अभी आपने कहा स्किल, है ना, रिसर्च स्किल क्यों डेवलप कर रहे हैं? स्किल जितना वैद्य जो है जितना स्किल्ड होगा उतना ही उसकी डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। फिर तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, स्किल्ड कैसे होगा? अलग अलग उसने लिटरेचर जो है वो पढ़े होंगे, अलग अलग उसमें प्रैक्टिकल्स जो है वो देखे होंगे, हाथ से किए होंगे, देखे होंगे और हाथ से किए होंगे, अपने प्रैक्टिस किया होगा। इसके बाद दृष्ट कर्मा, प्रैक्टिस जो है हमारा बिना, अब हम देखते होंगे मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो हाथ बटा रहे हैं, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सर्जरी उनको हाथ पे पकड़ा दी जाती है। तो दृष्ट कर्मा, और इसके बाद शुचि होना चाहिए। शुचि मतलब पवित्र होना चाहिए। पवित्र का मतलब रोगी के प्रति हमारे दिमाग में जो है वो पवित्रता होनी चाहिए, मन ठीक होना चाहिए। केवल पैसा कमाने के लिए अच्छा है, रोगी को या पेशेंट को क्या समझ ले लेते हैं आजकल? कस्टमर, है ना। तो भाव बदल गया। इसलिए रोगी के प्रति करुणा का भाव रखने वाला, ऐसे मन को पवित्र रखने वाला। आप मेल डॉक्टर से उनके पास फीमेल पेशेंट भी आती है, फीमेल डॉक्टर से उनके पास मेल पेशेंट्स भी आते हैं, भाव की पवित्रता। तो इसलिए 4 गुण जो है वो वैद्य के अंदर होने चाहिए। दूसरा बताया द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं मेडिसिन। इसके गुण जानने जरूरी है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन को जानेंगे तो उसके बारे में फिर आगे रिसर्च करेंगे। तो उसके बारे में कहा बहुकल्पम, आदर्श मेडिसिन के गुण क्या है? बहुकल्पम, एक ही फॉर्मेट में ना बनाया जा सके, अलग अलग फॉर्मेट में जो है वो बनाई जा सके। जैसे सुनो, आयुर्वेद में आपने गोली भी सुनी होगी, टैबलेट, जिसको हम बटी बोलते थे, चूर्ण बोलते थे, पाउडर होता था ना। आसव अरिष्ट या सिरप के फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, बनती हैं। आपको ध्यान में होगा वैद्य सुषेण ने संजीवनी बटी को कूट करके और क्या बनाया था? उसका रस निकाला था, स्वरस निकाला था। क्या निकाला था? स्वरस निकाला था। तो वो एक उसका रस, स्वरस या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मेडिसिन दी जाए। अलग अलग कल्प, उसको हमने सुना होगा, कोविड के टाइम में हम सबने काढ़े बनाए होंगे बहुत सारे, है ना। गर्म के उबाल करके 1/4 पानी अलग कर दिया, बचाया, और बाकी का पानी उड़ गया, काढ़ा बन गया, क्वाथ बोलते थे। तो इस तरह से, और भस्म जिसको बोलते हैं ना, रस औषधियां बोलते हैं। आयुर्वेद में अलग अलग मेटल्स के प्रिपरेशंस होते हैं, रस औषधियां। ऐसे सब अलग अलग फॉर्मेट में पाया जाए, बनाई जा सके मेडिसिन। च्यवनप्राश हम सब खूब खाते होंगे, खाते हैं कि नहीं? हम में से कितने लोग च्यवनप्राश खाते हैं? नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दो, नहीं सारा च्यवनप्राश खत्म हो जाने वाला है भारत का। हाँ, चाउमीन खाते होंगे, चाय से चाउमीन उन्होंने समझ लिया होगा। तो चाय से आप आजकल च्यवनप्राश खाना शुरू कर दो, नहीं सारा अमेरिका ले जाएगा, एक दिन आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है भारत का इस समय। आज उस पर चर्चा करेंगे जब हम करंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुगुणम,
मेडिसिन या सिंगल ड्रग में बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, आइडियल एक गुडुचि गिलोय सुना होगा, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, इम्यूनिटी बूस्टर है। अकेले गिलोय वात शामक भी है, वात रक्त या गाउट या जिसको हम बोलते हैं गठिया वात, उसमें लाभकारी है अकेले एक गुड़ची। अकेले एक हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है, उसके तो एंटी एलर्जिक है, और जो महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं में उपयोगी है, इसीलिए हल्दी को योषित प्रिया कहा है। ऐसे तो इसलिए बहुगुण होना चाहिए, संपन्नम पोटेंसी होनी चाहिए। आप देखो हर हर्बल प्रोडक्ट्स में एल्कलॉइड रेजिन्स और उसमें अंदर जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक्सट्रैक्ट जब करते हैं, नीम में निम्बिडिन होता है, हरिद्रा में कुरकुमिन होता है, तो उसके अंदर जो है वो पोटेंसी या एक्टिव प्रिंसिपल उसके अंदर सभी होनी चाहिए। दूसरा इसका अर्थ क्या है कि हर्बल मेडिसिन हमने केवल काष्ठौदी चूर्ण बनाया, उसको 6 महीने के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए। अब उसके सालों हो गए, बीत गए, रखे हैं हम घर में, तो फायदा नहीं करेगा। इसलिए समय पर उपयोग, जिसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट, सुना है ना एक्सपायरी डेट। आप एक्सपायरी डेट के बाद वाली मेडिसिन परचेज करते हैं क्या? नहीं करते। इसलिए ये गुण होना चाहिए, और योग्यत्व, उसमें सुटेबिलिटी होनी चाहिए, ये गुण है। ऐसे ही मेडिकल जो अटेंडेंट है, उपस्थाता है, परिचारक, उसके गुण बताए हैं। रोगी के गुण भी जान लीजिए। एक तो वेल्दी होना चाहिए, वेल्दी। उस समय भी आचार्यों को पता था कि वेल्दी होना चाहिए। वेल्दी मतलब जरूरी नहीं, देखो गरीब का भी उसका भी इलाज होना चाहिए, क्योंकि आचार्य ने एक जगह कहा मैत्री कारुण्यम आतेषु शक्य प्रीति उपेक्षण, मतलब रोगी के प्रति मित्र जैसा सोचना है, उसके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव रख के सोचना है। वे आढ्यो इसलिए लिखा कि मान लो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हो गई और असाध्य अवस्था या थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ चला गया व्यक्ति, तो क्या करना पड़ता है? देखो संजय गांधी से ठीक नहीं होगा तो कहाँ के लिए रेफर करते हैं? पीजीआई के लिए। पीजीआई कौन जा पाएगा? जो एम्बुलेंस अफोर्ड करेगा। कई बार एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आढ्य रोगी का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की दक्षता संपन्नता है तो वो बड़ी बीमारी से भी बच जाएगा। अब अक्सर देखने में आता है वो सीवियर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इमीडिएट उसको एयरलिफ्ट किया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो सामान्य एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पाते, मतलब हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये गुण बताया। विषक वश्य, ओबीडियंट होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा भैया सुबह शाम खा लेना दवाई, तो खाने वाला चाहिए। आपको मालूम है डॉट्स कैसे बना? डॉट्स प्रोग्राम सुना होगा, डीओटी डॉट्स। ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रोग्राम बनाया गया, लॉन्च किया गया। क्यों? पहले क्या होता था, हॉस्पिटल से दवाई दे दी जाती थी, 6 महीने तक ट्रीटमेंट उसको उसे लेना पड़ता था, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने। तो लोग ले जाते थे रैपर्स, और आज खाए, कल खाए, 3-4 दिन खाए, और उसके 3-4 दिनों में क्या उसकी 90% इन्फेक्टिविटी कम होती थी। लक्षण जैसे ही सबसाइड हुए वो आलसी हो जाता था, भूल जाता था, और दवाइयाँ खाना बंद कर दिया। तो बाद में उसे जो है वो रेजिस्टेंट टीबी होने लगा, दवाइयाँ वो वाली असर ही नहीं करने लगी, इसलिए और जो है वो ज़्यादा, जिसको बोलते हैं पावर की दवाइयों का उपयोग करने लगे। इसलिए डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, मतलब हम तुम्हें पेशेंट को दवाई नहीं देंगे, हम किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो फैसिलिटी होगा, हमारे एएनएम होगी, हमारा एमपीडब्ल्यू होगा, या आशा या आंगनवाड़ी के ही नाम पर हम दवाई इशू करेंगे, और वो अपने ऑब्जर्वेशन में रोज खिलाएंगे। कहीं प्रैक्टिकली हो सकता है आगे पीछे होता हो, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए ओबीडियंट होना चाहिए पेशेंट। और ज्ञापक, एबिलिटी टू एक्सप्रेशन आएगा, हमने उसे हिस्ट्री देना पूछा, बता सकेंगे, कम से कम बताएगा तो डायग्नोसिस अच्छी होगी। ऐसी कंडीशन में आया, मान लो अचेत अवस्था में आया, कोमा में आया, तो बता ही नहीं पाएगा, तो उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और सत्यवान का मतलब है सब तो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा टॉलरेंट होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा पेन जो है, अगर मान लो इंजेक्शन लगा रहे, अभी इंजेक्शन लगा नहीं है, बस इंजेक्शन यहाँ तक पहुंचा है, कमर तक, ऐसे चिल्लाते हैं लोग, वो चिल्लाते हैं ना। और कोई तो हम में से ऐसा भी होगा, लगा दो एक साथ 3-4 लगा दो, ऐसे आते हैं पेशेंट हमारे पास। तो जैसा टॉलरेंस ज़्यादा होगा, ऐसे पेशेंट्स को भी दवाइयों का असर ज़्यादा होता है। फिर कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो दोष का प्रशमन करती हैं, कुछ धातुओं का प्रदूषण करती हैं, मतलब
इक्विलिब्रियम स्टेट में लाती है, और कुछ प्रिवेंशन के लिए आवश्यक है, जैसे मैंने आप बताया इम्यूनिटी बूस्टर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। फिर औषधियों में गुण होते हैं, औषधियों की बात करें तो आप देखिए कि औषधियों के गुण में जिस औषधि में रुक्षता का गुण होगा वो रुक्षता बढ़ा देगा। जिस औषधि में थोड़ा सा स्निग्धता होगी वो रुक्षता को कम करेगा। काउंटर गुण है ना, ये आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इन्हीं को तो समझना है। तो इस प्रकार के 10 गुण और उसके 10 गुण विपरीत, जैसे 20 प्रकार के गुण या क्वालिटी बताई गई है, और उसके आधार पर कहा है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। जैसे ओज, शरीर के अंदर जो व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने वाले तत्व है उसको ओज बोलते हैं। ओज का जो गुण है वो दूध के गुणों से मिलता जुलता है ना, वो गोघृत के गुणों से मिलता जुलता है। इसलिए यदि हम गाय का घी सेवन करते हैं ओज बढ़ता। अब ये इसका मतलब ये ना समझ लेना कि खूब ठूस के गाय का घी खाना है, क्योंकि आचार्य ने ये तो कहा कि गाय का घी तो खाना है, लेकिन व्यायाम करने के लिए भी कहा है ना, तो घी बस मत खाना, अगर व्यायाम करते होगे तो भी घी खाना। ठीक, उसका ओज का जैसे ही हम घी का सेवन करते हैं तो ओज या व्याधि क्षमत्व या हमारी इम्यूनिटी ठीक होती है। ये उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा अनुसंधान, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च एंड रिसर्च स्किल्स। तो अनुसंधान पुराने समय में कहा कार्य है, कारण भावस्य द्रव्यानां गुणोत्तरमेव। हर द्रव्य में या कोई भी मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन में उसके गुण और कर्म होते हैं। कोई वात का शमन करने वाला है, कोई पित्त का को बढ़ाने वाला है, कोई कफ का शमन करने वाला है, कोई निद्रा लाने वाला है, ऐसे अलग अलग उसके गुण होते हैं। तो कार्य दिख रहा है, जैसे मान लो धुआं दिखा, में पुराने समय में उदाहरण सुना था ना, धुआं दिख रहा है ऊंचाई पर, क्या अनुमान लगाते हैं? नीचे आग होगी, है ना। अंडा देखा, क्या मानते हैं किसने दिया होगा? मुर्गी ने दिया होगा। इसका मतलब है कि जो परिणाम दिखाई दे रहा है उसका एक कॉज है, पीछे कारण है, इसलिए कार्य है। ये संपूर्ण जो सृष्टि है वो पंच महाभूत से बनी है। सुना है क्षिति जल पावक गगन समीरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 5 महाभूत सृष्टि में आत्मा, इंद्रिय, काल और मन को जोड़ दो तो वो चेतन सृष्टि हो जाती है। आप अंतर करो, जो अचेतन है, ये पत्थर है, ये जो डेस्क है, हमारा लैपटॉप है, क्या है? अचेतन है। पंच महाभूत है इसमें, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी महाभूत है इसमें आत्मा नहीं है, इसमें मन नहीं है, इसमें काल और दिशा भी है, लेकिन आत्मा और मन, ये चेतन का जो द्रव्य है वो नहीं है इसमें, इसलिए चेतन नहीं है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि जो है वो चेतन और अचेतन जो सृष्टि है वो पंच महाभूत से बनी है। तो यह कारण है, कारण द्रव्य बोलते हैं, इसी से इसका निर्माण हुआ है। और ऐसा जब बार बार रिसर्च करके आचार्यों ने स्पष्ट करके स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, परीक्ष स्थापनम सम्यक, है ना, सम्यक रूप से ऑथेंटिक और एप्रोप्रिएट वे ऑफ रिसर्च के माध्यम से परीक्षा करके जब हम स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, दैट इज अनुसंधानम उच्यते। कितने वर्ष पहले का पर्याय बताया है अन्वेषण, अनुपश्चात एषणम यदि अन्वेषणम। मतलब कोई चीज हो गई है, अब पता लगाया, कोविड हो गया तो पता लगाना पड़ा ना कि किसके कारण हुआ, है ना। किसी व्यक्ति ने धोखे से, उसको बुखार हुआ था, एक दिन जंगल में जा रहा था, उसने एक पत्ती उखाड़ के खाली, बुखार ठीक हो गया, तो पता लगाना पड़ा कि इसने ऐसा क्या खाया था, और खाया था उसको पता लगाया तो उसमें ऐसा क्या कंटेंट है जिसके कारण इसकी बुखार ठीक हो गई। अन्वेषण परिणाम हुआ उसके कारण। तो हम लोगों ने रिसर्च के बेस सुने होंगे, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। जब हम कार्य को देख करके कारण का पता लगाते हैं, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। जब हम कारण को देख करके कार्य का पता लगाते हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टिव रिसर्च। अब देखो आयुर्वेद में पहले तो कोई सिद्धांत होना चाहिए। देखो रिसर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, दिमाग में कोई क्वेश्चन आना चाहिए। सेव गिरा, हजारों साल पहले से सेव गिर रहा था,
लेकिन न्यूटन ने ही सोचा क्यों गिरा, है ना, कितने साल पहले गिरा, लेकिन जब गिरा तो पता चला कि क्यों गिरा, तो वो पीछे पड़ा उसको। तो इसलिए दिमाग में चाहिए क्वेश्चन, संशय, वो बाद में आएगा, लेकिन उसके लिए जब हम रिसर्च के लिए आगे बढ़ेंगे तो चाहिए सिद्धांत। अब हमको कोई तो क्लू चाहिए, क्यों गिरा मतलब क्लू चाहिए। नहीं यार, सेवा बस नहीं गिरा, पहाड़ से पत्थर भी गिरते हैं, पानी की बूंदें भी गिरती हैं, जब हम झरने में जाते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, मतलब कुछ तो है नीचे। तो इसमें कहा आचार्य चरक ने विमान स्थान में कहा है, सिद्धांतो नाम सयः परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष हेतु विश्व साधयित्वा स्थाप्यते। इसका मतलब यह है कि बार बार रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस। हम लोग क्या करते हैं लैब में जब जाते हैं, हम लोगों ने सुना वो टाइट्रेशन करते थे ना, एक बार में सर नहीं आया, कलर चेंज नहीं हुआ, तो क्या करते थे, दोबारा करते थे। मैंने कहा कि थोड़ा सा ml कम हो गया होगा HCl का, ऐसे ही है ना, तो बाद में और डाल दिया, फिर थोड़ा और मिलाया, फिर फेल हो गया रिसर्च, फिर किया, बहुविध परीक्षक है। इसलिए रिसर्च जो है हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, दैट इज नॉट रिसर्च। हम लोग करते हैं अश्वगंधा इज वेरी मच यूजफुल इन अ वात व्याधि, हम लोग ट्रायल करने लगे, नहीं आया रिजल्ट, दैट इज ऑल्सो जो है वो रिसर्च है। तो रिजल्ट अश्वगंधा में नॉट बी यूजफुल फॉर वात व्याधि, उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए दो प्रकार की हाइपोथेसिस तो समझ रहे हैं आप लोग, रिसर्च पढ़े होंगे। तो हाइपोथेसिस हम लोग सुने होंगे कि टेंटेटिव आइडियाज पोस्टुलेटेड टू बी टेस्टेड इज नोन एज हाइपोथेसिस। दो प्रकार की सुने हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये दवा काम करती है, काम नहीं करती, तो पहले यही सोचना पड़ेगा कि काम नहीं करती है, नहीं तो हम बायस होकर के रिसर्च करें। और जब ये तय हो गया कि अब जो है ये काम, इसने तो काम कर दिया, तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो रिजेक्ट हो गई, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश होती है। ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। आचार्य ने इसके लिए 5 अवयव बताए, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेद के लिटरेचर्स कंप्लीटली साइंटिफिक पैरामीटर से गुजरने के बाद ही लिखे गए हैं। वो आज के आधुनिक जो विज्ञान है उसके शब्दकोश के हिसाब से जब हमने बताना शुरू किया तो दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ गई आयुर्वेद। कोविड के बाद यही सिनेरियो देखने को मिलता है। इसलिए सिद्धांत क्या है, तो 4 प्रकार के सिद्धांत बताए। सर्वतंत्र ऐसा है, सर्टेन, एकदम कंफर्म, means existence of positive factors of disease and availability of methods of cure for curable disease। जैसे का ट्रूथ, कॉमन ट्रूथ, पक्की बात है, करता ही है। जैसे जल का सिद्धांत है, वो ग्रेविटी के बियॉन्ड जाएगा, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी गति होगी जल। तो ये सत्य है, यथार्थ सत्य है, दैट इज सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सबको मालूम है। परितंत्र सिद्धांत का मतलब ये है कि ट्रुथ स्पेसिफिक टू अ गिवन स्क्रिप्चर्स। जैसे 6 प्रकार के रस बताए, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 6 प्रकार स्पेशल जो कैरेक्टर बता दिया, स्पेशल कोई सिद्धांत किसी स्पेशल स्क्रिप्चर्स में बताया, वो सब जगह नहीं मिलेगा, आयुर्वेद वांग्मय में मिलेगा। तो ये परितंत्र स्पेशल जो हमारा सिद्धांत है। इसके बाद अधिकरण सिद्धांत, ट्रुथ इम्प्लाइड फ्रॉम द गिवन कंटेक्स्ट, रेफरेंस के साथ जब हम कोई बात बताते हैं। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभ्युपगमन सिद्धांत, ट्रुथ टेकन फॉर ग्रांटेड, दैट इज हाइपोथेसिस। ये आचार्य चरक की जो संहिता है, चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें चैप्टर में पूरा ऐसा रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब है। फिर क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस हमने बना ली तो प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, प्रपोजिशन। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, ये मुझे साध्य करना है, टाइटल है ना, टाइटल बनाते हैं ना अपन, उसमें क्या करते हैं, ये रिसर्च करने वाला हूं मैं, आई एम गोइंग टू डू दिस। तो ये जो है प्रतिज्ञा नाम साध्य वचन, साध्य वचन है, जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है किसी रिसर्च का, वो प्रतिज्ञा है। आप बताइए बिना प्रतिज्ञा किए आप कोई काम कर सकते हैं क्या? बिना डिटर्मिनेशन के, डेडिकेशन के कोई काम कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। हेतु, अब कारण में जाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा कर लिया, हाइपोथेसिस बनाने के बाद प्रतिज्ञा की हमने, सिद्धांत तय किया, सिद्धांत के बाद हमने प्रतिज्ञा की, जब हम ऐसा करने वाले हैं तो उसके कारण पे हम पीछे गए, कारण खोजा, अब उनको रिसर्च में आगे बढ़ना है। तो हमने इसमें क्या किया, ढूंढना चालू किया। तो कोई हमने जैसे क्लिनिकल ट्रायल की करना है तो हमें पेशेंट चाहिए। क्या चाहिए? पेशेंट चाहिए, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। हमको लैब में माइक्रोस्कोप में इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें प्लांट्स के जो कट्स हैं वो चाहिए, या हमारे जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाहिए। तो इस तरह से हेतु, स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, एक्चुअली दिस इज द रीजन और लॉजिकल कॉज दैट सबस्टेंशिएट्स द प्रतिज्ञा। उस प्रतिज्ञा को साबित करने वाला कोई एक कारण चाहिए। इसके बाद होता है दृष्टांत। तो हम क्या ढूंढते हैं? लिटरेचर ढूंढते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वहां से हमने कंटेंट उठाना शुरू किया और इसके बाद उपनय होता है, वो रिलेट करते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, लॉजिक देते हैं, उसके बाद उसका कंक्लूजन देते हैं, दैट इज निगमन। कुछ प्रमाण चाहिए होते हैं, जैसे आप्तोपदेश। आप्तोपदेश का मतलब यह है कि हमारे महापुरुषों ने कोई बात कह दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान विबोधन। बड़े लोगों ने कहा, अब उसमें ज्यादा सोचना नहीं, महापुरुषों ने कह दिया। ऐसे हमारे ऐसे स्क्रिप्चर्स है, वेद है, हमारे उपनिषद है। आप देखिए वेदों के बहुत सारे जो श्लोकों को आज नासा लेकर के रिसर्च कर रहा है। उपनिषदों को की बातों को, शब्द दर्शन सिद्धांत, आप वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत पढ़ लेंगे तो आपको न्यूटन के तीनों लॉ मिल जाएंगे। न्याय दर्शन आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी दुनिया में जो क्लूज हैं जो चलते हैं, जैसे रिलेशंस चलते हैं, फॉरेन पॉलिसीज चलती हैं, हमारे सोशल जो रिफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे उस दर्शन में मिलती हैं। तो इस तरह से हमारे जो ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं उनको आप्तोपदेश कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जिसको हमने वेद कह दिया, विज्ञान कह दिया, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, प्रत्यक्ष जो हमने डायरेक्टली आंखों से देखा। फिर दूसरा होता है अनुमान। देखा नहीं है, धुआं देखा है, लेकिन धुआं है तो मतलब आग होगी नीचे। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, दैट इज अनुमान। और फिर युक्ति, हम फिर लॉजिक लगाते हैं। जैसे किसी हेल्दी व्यक्ति ने कहा कि यार मैं तो दिन में एक ही टाइम खाता हूँ, तो क्या समझ में आएगा आपको? अच्छा मोटा ताजा है और कह रहा है कि एक ही टाइम खाता हूँ, मतलब झूठ बोल रहा है, दिमाग चलाएंगे ना, युक्ति। ऐसे ही कभी कभी न्यू इमर्जिंग डिजीजेस आती है, कोविड आ गया, खूब परेशान हो गए। उसके बाद क्या हुआ? वायरस के पीछे पड़े, फेल होते 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 पास हो गए, वैक्सीन बन गई। तो लॉजिक दिया, लॉजिक लगाया कि ये आरएनए वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड है, बार बार स्ट्रेन चेंज कर रहा है, इसलिए इसके स्ट्रेन चेंज करने की गति से अपनी गति थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा फास्ट इवॉल्व होना पड़ेगा। सोचा और किया तो रिजल्ट मिला। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई डाउट होना चाहिए पहले, तब तो हम रिसर्च में आगे बढ़ेंगे। फिर जिज्ञासा चाहिए, जो जिज्ञासु व्यक्ति होगा, जो इंक्वायरी करता होगा, बार बार प्रश्न करता होगा, अपने आप से करता होगा, दूसरे से करता होगा, वो अच्छा रिसर्चर माना जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा। फिर प्रयोजन, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और व्यवसायो नाम निश्चय, जब हम व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये दैट इज हमारा निश्चय है। ये बात अलग है कि हमको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज के समय में मिलता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग अपनी रुचि का व्यवसाय चुनते थे, इसलिए कहा व्यवसायो नाम निश्चय। तो हम ये रिसर्च भी जो कर रहे हैं वो हमारा निश्चय है कि हम ऐसा रिसर्च करके रिजल्ट देने वाले हैं। तो हमारा परिणाम क्या होगा? जो भी परिणाम होगा हम क्यों करने वाले हैं? तो समाज के हित में करने वाले हैं, देश के हित में करने वाले हैं। फिर ऐसे आयुर्वेदिक जो रिसर्च है उसमें पंचावय वाक्य को हमने समझा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट, जो न्याय दर्शन की भी थोड़ी सी बात की, मॉडर्न रिसर्च जो आज के पैरामीटर्स में, आज की टर्मिनोलॉजी के साथ हमने उसको थोड़ा कोरिलेट किया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो लिटरेरी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो अभी भी हिडन है, पुराने ताड़ पत्रों से अभी भी जो है पुराने नुस्खे मिल जाते हैं।
तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मैन्युस्क्रिप्ट्स पर काम करना शुरू किया। अलग अलग जो प्रीसियस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स डिपार्टमेंट बना दिया। जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पीजी की है, नेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर में, वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट पर अलग काम होता है। और वो पुराने जो ग्रंथ हैं, आज से 300 400 साल 500 साल पहले जो है वो पुराने चितड़ी, उसमें 4 लाइन उड़ गए हैं, उस पर काम करके आगे क्या हो सकता है इस पर काम करके रिसर्चर जो है वो लिटरेरी रिसर्च करते हैं और उस बुक को कंप्लीट करते हैं। आश्चर्य होगा आपको जान करके, आज जो अवेलेबल चरक संहिता है उसके 41 चैप्टर्स समय समय पर जोड़े गए हैं। कितने चैप्टर? 41 चैप्टर्स बाद में जोड़े गए हैं। वो इसी प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट या लिटरेरी रिसर्च करके आचार्य ने जोड़ा हुआ। 4वीं शताब्दी तक, पुराना 1000 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, 4वीं शताब्दी आते आते तक में वो पूर्ण हुआ है। भेद संहिता अभी भी उसके कई जो चैप्टर्स हैं वो अनअवेलेबल हैं। और जब कोरोना आया लोगों ने खगाला तो उसमें स्पष्ट लिखा था एक जगह पर, जब जनपदोध्वंस होता है, जनपदोध्वंस मतलब कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक होता है, तो अलग अलग संक्रामक रोगों के कारणों से अनायास ही श्वास, काश, ज्वर, अतिसार जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। भेद संहिता में आचार्य जो चरक के अग्निवेश तंत्र के साथ के ही उनके शिष्य हैं, पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य 6 शिष्य थे। तो इस प्रकार की पुराने लिटरेचर्स को रिसर्च कर सकते हैं। जो अब जो लोग कर रहे हैं, दुनिया के लोग अब आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स पर, मैन्युस्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। फिर ड्रग रिसर्च, न्यू मॉलिक्यूल्स को रिसर्च करना है तो ड्रग डिस्कवरी करना पड़ेगा। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के जो हमारे स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले क्या था, ये थोड़ा सा कठिन था। आज साधन संसाधन उपलब्ध हैं, इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। बायोटेक डिपार्टमेंट आप देखिए धीरे धीरे कई वर्षों में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले जो है एक्सट्रैक्ट निकालना किसी भी हर्बल मेडिसिन से कठिन था, टफ था। आज बहुत ही, आज एआई टेक्नोलॉजी से जो संपन्न जो है मशीनें आ गई हैं, एक्सट्रैक्ट बहुत फाइन तरीके से हम निकाल सकते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। लीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ड्रग डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह से क्लिनिकल रिसर्च, हमने कोई एक्सट्रैक्ट निकाला, अब हमको नया मॉलिक्यूल है या नया औषधि है, या हो सकता है पुरानी औषधि ही हो, तो हमको पर्टिकुलर व्याधि में वो काम आती थी, अभी हमको नई डिजीज में उसका रोल देखना है तो हमको क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा। ये भी एक काइंड ऑफ रिसर्च जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का फेज होता है, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, हमने सुना होगा चूहे में एक्सपेरिमेंट करते थे। इन विवो ट्रायल, आप अकेले अश्वगंधा में 1250 से ज्यादा इन विवो ट्रायल हो चुके हैं। दैट इज द करंट सिनेरियो। ऐसे में अगर सारी मेडिसिन के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो किसी में 800, किसी में 1000 ऐसे ट्रायल्स पूरे वर्ल्ड वाइड हो रखे हैं। तब आज हम ये कहने की स्थिति में हैं कि आयुर्वेद जो है वो मुख्य चिकित्सा ग्रंथ है, मुख्य चिकित्सा पद्धति है। कोविड के समय में इसे साबित किया। आपको मजेदार बात बताऊं, 24 तारीख से हमारा एक 24 नहीं 16 तारीख से 16 मार्च 2020 से हमारा एक सीएमई था पपरौला में। हम 2-1 दिन पहले निकले यहाँ से, प्रयागराज पहुँचे, संगम विहार किया और इसके बाद बड़े आनंद के साथ कि हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, पालमपुर घूमेंगे, उसके बाद फिर हिमाचल शिमला चले जाएंगे, कुल्लू मनाली घूमेंगे। सीएमई अटेंड करना तो एक केवल एक प्लान है और इसी समय कोविड के कारण वो सीएमई जो है कैंसिल हो गई। बहुत गुस्सा आया। ट्रेन को हमने अपने सामने से ऐसे गुजरते हुए देखा, रास्ते में लौट रहे थे तो खूब सोचा, फिर पढ़ना शुरू किया। यार कोविड 3-4 महीने से चल रहा है, इस पर थोड़ा सा नज़र घुमा लेते हैं एक बार। तो कोविड के पन्ने पलटने शुरू किए, थोड़ा सा देखना शुरू किया। WHO का उस समय जो ट्रेंड चल रहा था, दुनिया के लोग क्या कह रहे थे, वीडियो सुना। उसके बाद आयुर्वेदिक वांग्मय में पढ़ा। तो मैं रात को उस दिन बहुत देर तक करते करते अचानक मैंने ऐसे सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो है वो मैंने एक तरफ से देखता जाता था, एक तरफ से करता जाता था, ऐसे टाइप कर रहा था। नींद आ नहीं रही थी, गुस्सा लगी थी, सीएमई कैंसिल हुई थी, हिल स्टेशन जाना कैंसिल हुआ था भाई। तो करते करते मैंने उसमें पूरा प्रिंसिपल लिखा और वो प्रिंसिपल केवल कोविड में नहीं, दुनिया की सारी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए लागू होता है। उसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया। अभी भी 15 मार्च 2020 के मेरे टाइम लाइन को पढ़ा होता है, डेट भी मुझे याद है।
क्योंकि उसके बाद तो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लग गया, 24 तारीख को जो है लॉकडाउन लग गया। हम सब ने वो फेज देखा, बड़े दुनिया ने बहुत अच्छे से उस फेज को पार किया और भारत ने तो बहुत मजबूती से उस फेज को पार किया, ओनली बिकॉज ऑफ आयुर्वेद और हमारे जो देश के लोग थे, जो युवा थे, जो सेवाभावी लोग थे, उनके कारण। तो उस समय जो है वो जब हमें बाद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लगभग जून और जुलाई के महीने में जाकर के कोविड की गाइडलाइन जारी की। इसका मतलब क्या है, ये कोई हमारा वैशिष्ट्य नहीं है, ये आयुर्वेदिक वांग्मय या लिटरेचर का वैशिष्ट्य है। और उसके बाद तो सिनेरियो ही चेंज हो गया है। आज $250 बिलियन का एक्सपोर्ट है भारत का। आगे मैंने उसकी स्लाइड्स रखी है। फिर योग के क्षेत्र में रिसर्चेस, स्वामी विवेकानंद योग संस्थान एस व्यासा बेंगलोर, उसके 750 से ज्यादा योग पर ट्रायल्स के पेपर पब्लिश्ड हैं। आप वेबसाइट में जाकर के और उनको पढ़ सकते हैं। योग के क्षेत्र में, योग जो है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसके क्षेत्र में भी रिसर्च के बहुत सारे हमारे आयाम हो सकते हैं, हम उस पर बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऐसे हर्बल मेडिसिन के जो आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, देखो इंक्रीज ग्लोबल डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, हम सब ने सुना होगा, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी अब जाके अपने हर्बल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका सबका जो बिजनेस है वो ठप पड़ गया। 2033 तक ये डाटा कहते हैं कि अबाउट 500 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत से होने वाला है, मतलब 10% ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। दैट इज द करंट ट्रेंड ऑफ हर्बल मेडिसिन। इसके बाद पब्लिक परसेप्शन भी शिफ्ट हुआ। बीच के अंग्रेजों के कारण अंग्रेजों ने भर दिया कि आयुर्वेद का ज्ञान, अपने सनातन संस्कृति का ज्ञान, हमारे जो लिटरेचर्स का ज्ञान है वो क्या है, दकियानुसी है, नॉन साइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। तो हम लोग भी मानना शुरू कर दिए कि हाँ सही बात है, अंग्रेज कह रहे हैं तो सही होगा। तो धीरे धीरे करके ये जो सिनेरियो अब पब्लिक डोमेन में चेंज हुआ है, लोगों ने मानना शुरू कर दिया है और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो टेक्नोलॉजी का है। आज के डेट में हर व्यक्ति के पास जो है अपना मोबाइल है ना, मोबाइल, तो हर व्यक्ति के पास गूगल बाबा है। तो कहीं से कोई डिबेट होती है, कोई बात होती है, तो हर व्यक्ति जो है टाइप करता है और देख लेता है। इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में उभरा है और हर व्यक्ति के पास आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टूल है। इसलिए भी ये जो पब्लिक डोमेन में ये जो माइंडसेट चेंज हुआ वो भी एक बड़ा कारण है डिमांड बढ़ाने का, जिसने लोगों को विवश कर दिया आयुर्वेद और हर्बल फील्ड पर सोचने के लिए। आगे देखिए, जो मैंने आपको बताया, लगभग $533 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 2033 तक होने वाला है। 5 ट्रिलियन में आप लगा लीजिए, लगभग 10% होता है। साइंटिफिक वैलिडेशन, अब रिसर्च री प्लस सर्च, हम बहुत सरल भाषा में हमने पढ़ा। तो रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि जो पहला हमको कोई नया फैक्ट ही इस्टेब्लिश करना है। रिसर्च इज नॉट ओनली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्स, इट इज आल्सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। पहले से ही कोई तथ्य उपस्थित है, उसे हमें आज के संदर्भ में, आज की भाषा में, आज के लोगों को समझ में आ सके, ऐसी टर्मिनोलॉजी में प्रेजेंट करना पड़ेगा। शुरू कर दिया आयुर्वेद के लोगों ने। आज प्रीशियस इंस्टीट्यूट्स में इन विवो, विट्रो सब प्रकार के रिसर्चेस हो रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं और वो पब्लिकेशन में जा रहे हैं। लोग, दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद लोगों का जो है वो माइंडसेट चेंज हो रहा है। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, मैंने बताया, डिमांड के कारण, सप्लाई बदलने के कारण। अब जो कोलगेट बनाता था ना, कोलगेट सुना है ना, कोलगेट, वो भी बनाता है अब हर्बल दंत मंजन बनाता है ना, टूथपेस्ट। सारे फार्मास्यूटिकल्स ने अपने हर्बल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, तो बिजनेस ठप हो रहा था। रेगुलेटरी एफर्ट्स, पहले हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटीज ठीक नहीं होती थी, इसलिए हमने जीएमपी सर्टिफाइड जो है वो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। इसके बाद रेगुलेटरी जो हमारी अथॉरिटीज है उनसे हमने एफिलिएशन शुरू किया। यूरोपियन यूनियन के अपने नॉर्म्स है उसको फॉलो करना शुरू किया, WHO को फॉलो करना शुरू किया। तो जब हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब हमारा प्रोडक्ट होगा तब वो दुनिया में जाएगा।
लोग उसको सहज स्वीकार करेंगे। इसलिए वो सब भी करंट जो सिनेरियो में एकदम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब मैंने बताया आपको। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, नीम जो मेजर एक्सपोर्ट जो रॉ मटेरियल है जो भारत से दुनिया में जाता है, और की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस आर यूएसए, जर्मनी, इटली। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मध्य भारत सरकार ने दुनिया के 40 देशों के साथ एमओयूज किया है, वो नॉलेज ट्रांसफर को करने के लिए। हर जो जहां से एक्सट्रैक्ट निकलता है वो ऐसे अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी, शतावरी, गिलोय, हर घर में ये लगा दो। छोटा सा गार्डन बना लगता है इसके सब लगाने में, और आप देखेंगे अपने घर और अपने घर के लोगों का स्वास्थ्य एकदम बदलता हुआ। फिर पैक जो हमारे फूड आइटम्स जाते हैं, मैंने कहा ना, देखो च्यवनप्राश बहुत एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, और ठंडे देश हैं वो खाते हैं मजे से। और हमारे भारत में ये होता है, च्यवन ऋषि ने युवा रिजुवेनेट करने का एक फॉर्मूला दिया जिसमें बहुत सारी दिव्य औषधियों को डाल दिया, और हमारे लोगों को नहीं पता। इसलिए अब जब जैसे ठंडी का सीजन आने वाला ना, सब लोग च्यवनप्राश खाना, अलग अलग आता है, अलग अलग कंपनी का आता है, मैं किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कोई भी आप च्यवनप्राश खाएंगे तो आप हेल्दी होंगे, आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी। डाइटरी सप्लीमेंट्स पर भी बहुत सारा काम है। न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग एक इंडस्ट्री बन गई, न्यूट्रास्यूटिकल्स पर काम करना। आप सोचो, पहले आचार्य ने कहा कि 9 द्रव्य ऐसे हैं जिसको रोज खाना, नित्य सेवनीय द्रव्य कहा, षष्ठिकाम, शालीमुद्गाम, सैंधव, आमल के यवान। अब आप सोचिए, जो फसई का चावल है ना, वर्ष में एक बार, वो भी तीजा का व्रत रखने वाली हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं, वो वर्ष में एक बार खाती हैं। आचार्य चरण ने कहा रोज खाने वाला द्रव्य है। और हम लोग जो है कौन सा चावल खाते हैं रोज? सफेद वाला, पॉलिश, चमकदार। अभी तो सब प्रॉब्लम हो रही है। बीमार होते हैं तो कौन सी दाल खाते हैं? मूंग की दाल। और जब हेल्दी रहते हैं तो कौन सी दाल खाते हैं? अरहर की दाल। और आचार्य कह रहे हैं, 1000 साल पहले कहे कि यदि हेल्दी रहना है तो रोज खाने वाली दाल कौन सी है? मूंग की दाल है। तो रोज अगर अरहर की दाल, तुअर की दाल खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा ही, आपका घुटना दर्द करने लगेगा, थोड़े दिनों बाद गाउट हो जाएगा। रोज खाने वाला नमक हमने किसको बना दिया? देश का नमक, टाटा नमक। उसमें आयोडाइड नमक और ये सब मिला, फोर्टिफिकेशन, एडल्ट्रेशन करके मार्केट में परोस दिया। आचार्य कहते हैं सैंधव लवण रोज खाना चाहिए। और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो रेगुलर सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, उनको बीपी बहुत दिनों तक नहीं होता। ऐसे ही आप ट्रेंड बदला है, लोगों का लाइफ स्टाइल जो जंक फूड की तरफ चला गया था, फिट इंडिया मूवमेंट आ गया, हेल्दी फूड हैबिट्स पर कैंपेन होने लगे, वर्कशॉप होने लगे। इस तरह से सिनेरियो बदला है। ये मेजर एक्सपोर्ट हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इनको अपने घरों में सबको लगाना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश शासन की एक पॉलिसी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिसिन। किसानों को भी इसमें अवेयर कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिसिन को गोद लेकर के और उसकी फार्मिंग करे। रीवा को टर्मरिक मिला, हल्दी मिला है, और मऊगंज नया जिला बना है, उसको एलोवेरा मिला है। एग्रीकल्चर के हमारे स्टूडेंट्स जो रिसर्चर्स हैं वो फार्मर्स को जाके समझाते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ उनका कोलैबोरेशन है। आयुर्वेद के जो हमारे फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं वो बुलाते हैं उनको, और उनको किसानों के साथ मिला के कोलैब करके उनको ट्रेन किया जा रहा है कि हम उपज बढ़ाएंगे तो कैश क्रॉप है, सीधा पैसा मिलेगा, सीधा एक्सपोर्ट होगा। इसलिए ये तो इसकी खेती और उपज जो है वो बढ़ाना और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना, ये सब सारा मैंने आपको बताया। देखो, कोविड के समय में कम्युनिकेबल डिजीज एकदम से उभर के सामने आई। अदरवाइज ये देखो एनसीडी का डेथ टोल है अबाउट 86% ऑफ डेथ्स फ्रॉम एनसीडी, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब जीवन शैली के कारण, हमारे फॉल्टी लाइफ स्टाइल के कारण, लेट उठने के कारण, देर से सोने के कारण, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मोबाइल उपयोग करने के कारण, नशे के कारण जो होने वाली व्याधि है, उसके कारण 86% डेथ जो है वो होती है मिडिल इनकम कंट्रीज में। यदि हम चलो भारत को थोड़ा सा डेवलप्ड भी मान लें तब भी यह आंकड़ा 66% का है।
20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब जो संक्रामक व्याधियों का दौर शुरू हुआ और महामारियां फैलना शुरू हुई, उस समय ज्यादातर डेथ जो होती थी वो कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक व्याधियों के कारण होती थी। सुना होगा हमने, हैजा, कॉलरा, प्लेग, गांव के गांव उजड़ जाते थे। लेकिन वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई, उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज के कारण डेथ जो है वो कम हो गई। जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ वो किसकी तरफ हुआ, तो लाइफ स्टाइल डिजीज की तरफ बढ़ा। अब इसलिए लाइफ स्टाइल डिजीज पर दुनिया का फोकस बढ़ गया। कोविड जैसे कुछ आंकड़ों को छोड़ दिया जाए तो आज फॉल्टी लाइफस्टाइल, अगर 28% ऑफ एनसीडीज के कारण डेथ हो रही है, 66% टोटल डेथ हो रही है, तो 28% अकेले कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण, हार्ट के कारण मृत्यु हो रही है। कारण क्या है? तो लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, लाइफ स्टाइल में खान पान सब जंक फूड, जैसे मैडम ने कहा अभी चाय से च्यवनप्राश नहीं पता, पर चाय से चाउमीन सबको पता है, बर्गर सबको पता है, पिज्ज़ा सबको पता है, डोमिनोज का तो आजकल जोमेटो और स्विगी मैं भी जान गया हूँ, है ना, तो सबको पता है। लेकिन ऐसी अच्छी चीज़ों को धीरे धीरे हमारे लाइफ स्टाइल से दूर किया। आचार्य सुश्रुत ने कहा उस समय 1500 साल पहले ईसा के, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात स्वासात सह भोजनात् शय्यासनात् चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात्, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताए। कोविड ने सिखा दिया ना नमस्ते करना, हाथ नहीं मिलाना, 2 गज दूरी से नमस्ते करना। क्या बोलते थे इसको? सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूर रहना। क्यों? क्योंकि कहा है सारे कम्युनिकेबल डिजीज का मोड बताया है, प्रसंगात, गले मिलना, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, एक दूसरे के नजदीक बैठना। गात्र संस्पर्शात मतलब फिजिकल टच। श्वासात, ये जो हमारा नेजल एंड ओरल जो सिक्रीशंस है, जो ना स्नीजिंग कफिंग के कारण जो निकलता है चीखते खांसते समय, है ना, श्वासात, उसके कारण ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाहर निकलते हैं और दूसरे के पास जाते हैं और दूसरे को भी वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए हमने क्या लगाया था? कौन सा? N95 मास्क लगाया था, क्योंकि बचाना था अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन घटा दिया। मैंने क्या, आचार्य सुश्रुत ने कहा मोड ऑफ ट्रांसमिशन 1000 साल पहले, 1500 साल पहले भी सर। स्वासात सह भोजनात्, एक ही थाली में भोजन करना करते थे उस समय, कोई एक दूसरे के साथ एक ही भोजन थाली में भोजन। वैसे तो दोस्त लोग क्या कहे जाते हैं, एक ही थाली के, तो आप लोग नहीं होंगे मेरे ख्याल से, है ना, ये हाइजीनिक प्रोसेस है अलग अलग। तो इसलिए शय्यासनात् चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात्, एक दूसरे के कपड़े पहनना, इस प्रकार के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज बताई, कुष्ठम, लेप्रोसी, ज्वरम, ज्वरश्च मतलब फीवर, या फीवर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शोषश्च ट्यूबरकुलोसिस काइंड ऑफ डिजीज, और नेत्राभिषंद एव च, नेत्राभिषंद मतलब कंजंक्टिवाइटिस, एव च, ऐसी व्याधियां, संक्रामक व्याधि, हमने चा जोड़ दिया मतलब ईटीसी जोड़ दिया, अन्य, इतने साल पहले बताया। तो ये भी सिनेरियो है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेबल डिजीज पे कंट्रोल करना चाहेंगे तो पहले हमको ये कारण बंद करना पड़ेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा। एलोपैथी की सारी बुक्स में मिलता है, एलिमिनेशन ऑफ सोर्स एंड रिजर्वायर, ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, है ना। इसलिए आयुर्वेद लिटरेचर से उन ट्रेसेस को पकड़ के ये हमको ठीक करना पड़ेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया अब आज के समय में एडवांस ड्रग डेवलपमेंट, हर्बल मेडिसिन के साथ मॉलिक्यूल्स नए नए, जो एलोपैथी या जिसको हम एलोपैथी तो नहीं कह सकते आजकल, हम तो आयुर्वेद के विद्यार्थी सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् मानते हैं, सभी द्रव्य पंच महाभौतिक हैं, इसलिए कहीं विषमता नहीं है। लेकिन सो कॉल्ड 2 मॉलिक्यूल्स को मिला करके भी नया मॉलिक्यूल्स तैयार करना, बीच के एक समय में आयुर्वेदिक इंजेक्शंस भी आ गए, लेकिन वो सरकार के लेवल पर कुछ कारणों से बैन हुआ, क्योंकि हो सकता है संभवतः उनके पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं बने रहे हों। लेकिन ये भी एक एडवांसमेंट है, भविष्य में इस पर भी काम हो रहा है, हो सकता है एडवांसमेंट देखने को मिले। रिवर्स फार्माकोलॉजी, द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्लिनिकल नॉलेज विद मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल रिसर्च will lead to more effective drug candidates derived from plants.
सस्टेनेबल सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी। अब देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिलकर के काम करना पड़ेगा आयुर्वेद के साथ, इन्वायरमेंट साइंस को भी काम करना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी को भी काम करना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी को भी काम करना पड़ेगा। यदि मिल करके कोलैब हो करके कोई रिसर्च करेंगे तो नोबेल प्राइज मिलता है। 2 काल भोजन करना है और सुबह का भोजन 10 बजे करना है, रात का भोजन सुबह के भोजन के 9 घंटे के अंतर पे करना है। ऐसे अगर हमने रात को 7 बजे भोजन किया, दिन में 10 बजे किया, तो रात भर बीतने के बाद सुबह तक 14-15 घंटे का डिफरेंस मिलता है। ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है और ऐसे व्यक्ति को कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जापानी साइंटिस्ट ने आयुर्वेद के वांग्मय से ट्रेसेस उठा करके और साबित किया और नोबेल पुरस्कार मिल गया। इतना नहीं, सर्केडियन रिदम पर मिल गया नोबेल पुरस्कार। सर्केडियन रिदम क्या है भैया? ब्रह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठेत जीर्णाजीर्ण विचारे। जब हमारे पांचों अब जो नेचुरल एलिमेंट है जिसको हम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बोलते हैं, पंचामृत वेला बोलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त। आप उस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लीजिए। 3 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स सिरमौर चौराहे का चेक कीजिए और फिर उसी को सुबह 4 बजे 5 बजे चेक करिए। दे सकता हूँ, समय कम है। ये सारा आयुर्वेद हम लोग पूरा वर्षों 5-6 साल में पढ़ते हैं। मैं भी पगला ये सोच रहा हूँ कि आपको आधे 1 घंटे में पूरा आयुर्वेद ठूस करके चला जाऊँ। नो, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं उसके कुछ ट्रेसेस आपको इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर वो जिज्ञासा जिसके लिए मैंने बात की थोड़ा पहले, वो जिज्ञासा आपके अंदर आ जाए और आप क्वेश्चन करने लगे कि दैट इज आल्सो द फील्ड फॉर रिसर्च। आप उसमें सोचने लगे। केवल लाइफ स्टाइल में मजेदार बात आपको बताऊं, पुणे के एक योग संस्थान ने भारत के कुछ जेलों का सर्वेक्षण किया, सर्वे स्टडी। टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी में ये भी आता है, सर्वे स्टडी। सर्वे किया उन्होंने, क्या नोट किया? कैदियों का नहाने का पैटर्न नोट किया। तो उन लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो आज नहा के नहीं आए हैं, मुझे माफ करेंगे। लेकिन नहाने का पैटर्न नोट किया तो क्या पाया कि जो सबसे जघन्य अपराधी थे, जिसको बोलते हैं सब सीवियर लेवल का क्राइम जिन्होंने किया था, वो 4-4 दिन 5-5 दिन नहाते नहीं थे। और जो छुटपुट अपराध में गए थे, धोखे से चले गए थे, एक्सीडेंट हो गया कुछ इस प्रकार का, वो नियमित रूप से नहाते थे। तो डिस्कशन करके वो कंक्लूड करते हैं कि आचार्य चरक कहते हैं स्नान के बारे में, पवित्रम दृश्यमायुष्यम स्नानम ओजस्करम परम। स्नान करने से पवित्रता का भाव आता है। आप नहा के निकलते हैं बाथरूम से तो क्या सबसे पहले ध्यान में आता है? भगवान, घंटी, टीका, या कुछ अच्छा ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो नहा के जाने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नहा के जाएंगे, बिना नहाए चले जाएंगे, रिजल्ट बदल उल्टा मिलने लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे लिटरेचर कह रहे हैं। और इसलिए साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड लिटरेचर थे, साइंटिफिक पैरामीटर्स में एस्टेब्लिश्ड हुए सिद्धांत के प्रिंसिपल्स थे। बस उन्हें वापस आज की भाषा में, आज के सिनेरियो में एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। हमारा किचन क्या है? किचन में हमारे जितने भी मसाले इस्तेमाल होते हैं सब हर्बल मेडिसिन। हमको ध्यान में होगा, हमें से कभी हमको चोट लग जाए तो हमारी माँ डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो हमको हल्दी लगा देती थी। वो हमको खांसी आने लगे तो हमको शहद चटा देती। चाय में तुलसी, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन का थोड़ा अर्क डाल दिया या उसकी चाय बना दी या उसका काढ़ा बना दिया और हमने 2-3 बार पी लिया और ठीक हो गए। होता था ऐसा। पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा एसिडिटी लग रही है तो सौंफ खिला देती थी। ये कहाँ मिलते हैं? हमारे किचन में मिलते हैं। हमने कुछ नहीं किया, केवल अपनी किचन मेडिसिन को, किचन कैबिनेट को जो सजा धजा के रख लिया, ठीक से रख लिया, उसका उपयोग रेगुलर करने लगे। तो जो हमारा जो इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो जाएगा भारत। ये भी एक काम है हमारे लिए भविष्य। ये देखो 10 औषधीय पौधों के नाम मैंने इसमें लिखे हुए हैं।
आप पीपीटी ले सकते हैं, कम से कम इनको, इसमें एक आध मेडिसिन और जोड़ सकते हैं। पुनर्नवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, पत्थर चटा बोलते हैं। जो लोग पुनर्नवा का इस्तेमाल, पुनर्नवा सरस का इस्तेमाल रोज करते हैं, उनको किडनी डिजीज नहीं होगी कभी, गारंटी के साथ देता हूँ। लेकिन हाँ, डिजीज होने के पहले लेना पड़ेगा। ऐसे ही सारे मेडिसिन बताए हैं, तुलसी, आंवला, नीम, अश्वगंधा, हल्दी, एलोवेरा, ब्राह्मी, पुदीना, गिलोय, पगंधा। ड्रग डिस्कवरी और ड्रग जो हमारा डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस है, हमको मालूम है। डिजीज टारगेट आइडेंटिफिकेशन, किस डिजीज में हमको कौन सा रिसर्च करना है, मॉलिक्यूल खोजना है, तो पहले तो टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, एफिकेसी देखनी पड़ेगी, साइड इफेक्ट्स देखना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है शिफ्टिंग का, जो आज पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है समाज का, उनको मालूम पड़ गया है कि एलोपैथी की सामान्य पैरासीटामोल का भी लॉन्ग टर्म यूज जो है वो हेपेटिक फेलियर करता है, लिवर को डैमेज करता है। कई एंटीबायोटिक्स हैं जो ओटोटॉक्सिक होती है, कान को हियरिंग लॉस करती है। कई एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं, कई मेडिसिन ऐसी हैं जो रीनल टॉक्सिक होती हैं और किडनी को डैमेज करती है। हम किसी एक बीमारी के कारण एक मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स के कारण दूसरी बीमारी होती है। इसलिए भी सिनेरियो बदला है, लोग हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स कम है। नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही दवाई लेनी चाहिए, चाहे कितनी भी सिंपल मेडिसिन क्यों ना। क्योंकि आजकल तो लोग गूगल करते हैं, सीधे स्टोर में जाते हैं, दवाई परचेस करते हैं। आयुर्वेद में सिद्धांत है पुरुषम वीक्ष्य, हर व्यक्ति के इलाज के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। इसलिए ये सिनेरियो बदला है। मार्केट में आने के पहले, मार्केटिंग फेज में आने के पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। हम लोग रैबिट्स में ट्रायल करते थे, हम लोगों के समय में वो चूहे में चलता था, अब बंद हो गया। अब क्या करते हैं, किसमें, चूहे में, पहले फ्रॉक्स में चलता था, फिर अब वो चूहे में करते हैं ट्रायल्स। तो उसको प्री क्लिनिकल या एनिमल स्टडीज बोलते हैं। मॉलिक्यूल या किसी एक्सट्रैक्ट को हमने एनिमल्स को दिया, उस पर रिजल्ट देखा, रिजल्ट ठीक आया, पॉजिटिव आया, तो ही मनुष्य पर उसका कंसेंट लेकर ही हम ट्रायल पर जो इन्वॉल्व होते हैं उसका कंसेंट लेते हैं। पहले हम फेज 1 स्टडी करते हैं, 30 to 100 सब्जेक्ट्स लेते हैं, इसके बाद 500 लेते हैं, फिर 1000 लेते हैं। जब 1000 से ऊपर लोगों पर ट्रायल सक्सेसफुल होता है, तभी वो मार्केटिंग फेज में जाता है। उसके लिए भी हमको एडवर्स रिएक्शंस काउंटर करने के लिए पहले लोगों को लगाना पड़ता है कि कोई भी एडवर्स रिएक्शन आए, इमीडिएट रिपोर्ट हो, हम सारा स्लॉट वापस मंगा लें। कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमारे ड्रग रिसर्चेस के फील्ड्स हैं। सम प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर राजस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली एंड गोवा, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ जामनगर, इटरा, सेंट्रल काउंसिल of research in Ayurveda and Siddha, Morarji Desai Institute of National Institute of Morarji Desai National Institute of Yoga, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आयुर्वेद के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सब की बात मैंने पहले ही कर दी। कोई ऐसा तो नहीं बनना चाहता, भगवान करे आप में से कोई ऐसा ना बने। ऐसा नहीं बनना चाहता तो आयुर्वेद के वांग्मय में ऐसी दिनचर्या का पालन करने के लिए कहा है। ब्रह्म मुहूर्त जगना, जागरण करना, उषा काल जलपान, उठते ही लगभग 700 ml का वाटर इनटेक करना, हो सके तो ताम्र पात्र जल में करना। कोविड का वायरस केवल 4 घंटे के लिए केवल कॉपर सरफेस में सर्वाइव करता था, ऐसा WHO ने रिकमेंड किया, साइंटिस्ट ने कहा। और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बहुत पहले से तांबे में जल भर के रात को रखते थे, सुबह पीते थे। आचमन करना, दंत धावन, है ना, सुना होगा, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नितकर 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 नितकर, सुना है ना। बचपन में हमने तो हिंदी की कविता में यही सुना है, नीम दतूनी जे करे, है ना, और गूंजी हर्रे चबा, नीम की दातौन करना, भुजी हुई हरण हर्रे को चबाता है जो व्यक्ति, और दूध बियारी रात को जो भोजन करता है, भोजन के समय दूध का सेवन करता है, और दूध का मतलब गाय का दूध, देसी गाय का दूध, दूध बियारी जे करे ताघर वैद्य न जाए। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा, बहुत पहले लोगों ने कह दिया। तो इसलिए इसका करना, सेवन करना। शिरोभ्यंग, शिर में तेल लगाना, है ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, तेल लगा लेंगे तो क्या हो जाएंगे,
चिपकू है, दिमाग में आता है ना, तेल लगाएंगे नहा के बढ़िया निकले, तेल लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अरे तो बगल वाला क्या सोचेगा, वो टीवी में ऐड भी आता है। तो इसलिए वो लाइट ऑयल का चलन चालू हो गया। अरे लाइट ऑयल्स ने तो सिर का और बाल का कबाड़ा कर दिया, पहले वाली फोटो जैसे हो जाओ। तो इसलिए तेल ठीक से लगाओ। आपको लगता है कि हमको कहीं जाना है, ऐसे जरा हमारा प्रेजेंटेशन है, गड़बड़ हो सकता है, तो उस समय वॉश कर लो, थोड़ा पहले लगा लो, रात को लगा लो, दिन में, मतलब दिन में कम से कम फोलिएशन अच्छे से करना, शिरोभ्यंग बोलते हैं। पैरों में मालिश करने वाले व्यक्ति को नींद बहुत अच्छे से आती है, ये भी बहुत अच्छे, इसके भी मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ ट्रायल्स के। अभ्यंग करना, व्यायाम करना, ये सब बताया। और वस्त्र धारण करना, श्रीमद परिषदम शस्तम, अच्छे वस्त्र, स्वास्थ्य सुधरे वस्त्र का धारण करने से जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में जाते हैं तो लोग, सामने वाले लोग कहते हैं वाह, बोलते हैं ना। तो वस्त्र धारण करना, साफ सुथरा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके प्रेजेंटेशन को, पर्सनैलिटी को एनरिच करता है। ये मैंने बताया सर्केडियन रिदम, जिस पर नोबेल प्राइज मिला। ऐसे जितने दिनचर्या प्रोसीजर्स हैं उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। नींद बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे गुरुजी के पास पेशेंट आते थे तो वो कभी नहीं कहते थे कि सुबह जल्दी उठो, वो कहते थे जल्दी सो जाओ। वो बोलेंगे कि जल्दी उठोगे, सब बोलते हैं यार कहाँ से आ गए, डॉक्टर के पास आए, किसी टीचर के पास आ गए, सुनेंगे नहीं। तो उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को कि भैया, पहले भी लोगों ने कहा, क्या बोला, अर्ली टू बेड। वो पहले नहीं बोल दिया, पहला वाक्य नहीं बोला अर्ली टू राइज, क्या बोला, अर्ली टू बेड बोला, देन अर्ली टू राइज बोला, फिर बोला हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, क्योंकि हेल्दी भी रहना है, वेल्दी भी रहना है। हेल्दी रहने भर के लिए अगर कह दिया होता तो लोग पालन ही नहीं करते, वो तो पैसे का मामला आ गया ना। बोले हाँ यार जल्दी ठीक है, इसे जल्दी सो, तो जल्दी सोओगे तो अपने आप नींद जल्दी खुलेगी। निद्रा, आजकल मोबाइल, डिजिटल एडिक्शन नया न्यू इमर्जिंग डिजीज है। मोबाइल यहाँ रख दो, नहीं भी बज रहा ना, थोड़ी देर में लगने लगता है बज तो नहीं रहा, तुरंत उठा के देखेगा। फिर मोबाइल जेब में नहीं है लेकिन थोड़ी देर में वाइब्रेशन फील होते रहे, अरे नहीं है जेब में मोबाइल, ऐसा लोगों को लगता है। आपको ध्यान में होगा जब शुरू में कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक नई प्रॉब्लम ने जन्म लिया। अल्टीमेटली लोगों को वर्कआउट करना पड़ा, मजबूरी हो गई, कंप्यूटर पे तो काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, तो रेटिना प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बनने लगे। लेकिन उसके अलावा भी हम 30 मिनट 30 का फॉर्मूला इस्तेमाल करने लगे कि 30 मिनट के काम करने के बाद या 20 मिनट के काम करने के बाद स्क्रीन में 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूरी पर हमको देखना है, आंखें रिलैक्स रहेंगी, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचेंगे। इसलिए नींद लेना। ऐसे ही हमको सीजनल जो बीमारियां होती हैं उस पर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। कोविड के रिलेशन में मैंने जो उस समय देखा, जो ट्रेंड देखा, उसमें एक तो प्रिवेंशन के लेवल पर, और जब हम इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन देते हैं, उस समय आरोग्य कषाय चलता था एक मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, वो हम मेरे कोविड पेशेंट्स को बांटा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आयु नाम के एक रेप्यूटेड जो जर्नल है, इंडेक्स जर्नल है, उसमें वो पेपर पब्लिश भी हुआ। तो ऐसे जो सीजनल जो हमारी व्याधियां हैं उस पर हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं, उसका ट्रेंड देख सकते हैं। कई कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो ठंडियों में एकदम प्रोन होती हैं। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो मच्छर से, मक्खियों से, जो इस प्रकार के कीड़े मकोड़े से जो फैलने वाली बीमारी है, वो बरसात में अमूल होती है। तो ऐसे इस तरह के जो ट्रेंड से फिर अपने हेल्थ में जो प्रिवेंशन है और क्योर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में देखा। देखिए, मैंने BAMS के तुरंत बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एक फेलोशिप किया आयुर्वेदिक दंत चिकित्सा, और उसमें योग का एक एप्लीकेशन अप्लाई करते थे एक पेशेंट्स के ऊपर, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मोबाइल टूथ को हम लोग बड़े आसानी से उखाड़ लेते थे विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, बिना किसी एनेस्थीसिया दिए हुए निकाल लेते। इसका मतलब कि दैट प्रोसेस क्रिएट्स समथिंग एनेस्थेटिक इफेक्ट लोकली। इसका मतलब ये था कि
उस 45 सेकंड 1 मिनट के अंदर एनेस्थेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करने वाली पद्धति है हमारे पास। उस पर मैंने फेज 1 ट्रायल किया जब मैं पीजी कर रहा था जयपुर से। एडवांस रिसर्च आप कर सकते हैं उस पर बहुत सारे हम लोग मेडिसिन भी देते हैं दांत उखाड़ने के बाद, और जो ब्लीडिंग गम्स में काम आती है, जिंजिवाइटिस में काम आती है, ऐसे फॉर्मुलेशंस का उपयोग करते हैं। ये कोई बात नहीं, लेके जाऊंगा देख लूँगा। फिर ऐसे ही घरेलू उपचार के कुछ मेडिसिन है। नस्य, अणु तेल का नस्य दे देते हैं हम लोग। नेजल हाइजीन जो है वो मेंटेन करता है। जिन लोगों को हमने नस्य कराया, तेल का नस्य 2-2 ड्रॉप्स नाक में डाले, उनके नेजल ट्रैक्ट में वायरस की कॉलोनी बनी नहीं, स्टिक ही नहीं होता था वायरस। आप देखा होगा कोरोना का वायरस, वो चलते हुए 2 पैर लगे, उसके हुक्स निकले रहते थे, टीवी में ऐड आता था। तो जो हुक्स होते थे वो कैविटी में, वो कहीं पर म्यूकस में वो स्टिक होता है, फिर बाद में वो डेवलप करता है, वो स्टिक होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती थी, वो केवल ऑयल नस से लेने से। तो ऐसे बहुत सारी सावधानियां। IQ, EQ, MQ। जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, IQ सब बढ़ाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा IQ टॉप में रहे। EQ भी हम इमोशनली भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहे। कौन है ऊपर महाराज जी? रावण है। IQ तो बहुत जबरदस्त था आप लोगों जैसा, है ना? EQ भी बहुत जबरदस्त था इनका, कहाँ मात खा गए। तीसरा कौन सा पॉइंट है? MQ। इसका मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशंस के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल डायमेंशन, दैट मॉरल डायमेंशन में भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तभी जो रिसर्चर है, रिसर्चर को भी पवित्र रहना पड़ता है। ये बायस हो जाएगा, मुझे तो अपनी रिसर्च को सही साबित करना है। वो भविष्य में मार्केट में उतरने के बाद कितने भी लोगों की जान ले ले, इससे मुझे क्या, है ना? एक मूवी देखी होगी आपने, क्रिश देखी है ना? उसमें जानवर और मनुष्य को मिला के क्या बना दिया उन्होंने? वो क्या था उसका जो विलेन था, अपने मानवर बना दिया। मानवर बोलते थे ना, काया मानवर बना दिया। और ये एक स्टोरी है, लेकिन ऐसा ही है। आज बहुत सारे बायो वेपन्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुनिया के देशों के लैब्स में जो है फ्रीज्ड और स्टोर्ड है। चाइना फेंक देता है धीरे से कोविड, अमेरिका धीरे से स्वाइन फ्लू, और दुनिया के देशों में हलचल मच जाती है। तो IQ भी ठीक है, EQ भी ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, लेकिन MQ में मात खा जाते हैं। और MQ में कौन स्ट्रॉन्ग है? तो हमारा भारत, जो दुनिया के देशों की मदद करता है। टर्की हमेशा भारत के विरुद्ध बोलता है, लेकिन भूकंप आया तो भारत से दवाइयां और खाने का सामान जो है भारत ने भेजा। पाकिस्तान हमेशा जो है उटपटांगी करता है भारत के साथ, लेकिन वहां पर भी संकट आता है तो वैक्सीन से लेकर के सारे इक्विपमेंट, साधन संसाधन, मास्क और PPE किट भी नहीं था उनके पास, भारत भेजता है। इसलिए हम MQ में स्ट्रांग है, इसलिए हमने IQ, EQ के लेवल पर काम करने के साथ MQ लेवल पर भी काम करना है। और ये सर्वे स्टडीज के माध्यम से ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो दिनचर्या के, ऋतुचर्या के, सदवृत्त के, आचार रसायन के, हम उन्हें स्टैब्लिश कर सकते हैं। और देखिए आज के यूथ को बहुत सारे इस प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, स्ट्रेस रहता है, तैयारी करते हैं, कंपटीशन रहता है, तो बहुत सारी, इन सब में आयुर्वेद जो है वो सहायक है। पहले जो बातें मैंने आपसे कही वो जो हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने मुझसे एक्सपेक्ट की थी, वो बातें मैंने कहने का प्रयास किया। अब मैं जो आपसे बातें कह रहा हूँ वो बातें कह रहा हूँ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सत्य बोलना कठिन नहीं है। आचार्य चरक ने 3 स्थानों पर सत्य बोलना बताया। एक जगह पर बताया उन्होंने सत्य बोलना जो है वो सदव्रत का पालन यहाँ करते हैं। दूसरा उन्होंने चिकित्सा स्थान में बताया जहाँ आचार रसायन का मतलब बताया। इसका मतलब ये था कि देखो पुराने के समय में रिपीटेड जो प्रिंसिपल्स नहीं लिखते थे आचार्य, उसको पुनरुक्त दोष माना जाता था। दोबारा लिखा तो मेरे दिमाग में भी आया, हम लोगों के दिमाग में आया कि ये पुनरुक्त दोष तो नहीं है। पुनरुक्त दोष नहीं है क्योंकि वहां पर सत्य बोलना प्रिवेंशन है और यहाँ पर सत्य जो है वो थेरेपेटिक वैल्यू है उसकी।
ऐसे ही अक्रोधम, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पूरी पैथोलॉजी क्रिएट होती है मेंटल हेल्थ की। और देखो बड़ी मजेदार बात है, कोई व्यक्ति मेंटली इल हो गया तो देर सवेर फिजिकली इल हो जाएगा। किसी को स्ट्रेस हो गया तो देर सवेर वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा, हाइपरटेंसिव हो जाएगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कार्डियक अरेस्ट होगा। इसलिए उन्होंने कहा पूरी पैथोलॉजी बताई। क्रोधात् भवति, क्रोध जब आता है, जब जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो क्या हो जाता है, पहले विवेक मर जाता है ना। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, क्या सही क्या गलत भूल जाता है ना। फिर हम क्या करते हैं, मूवीज में देखते हैं कि गम मिटाने के लिए दुनिया भर के उटपटांग काम करने लगते हैं लोग। यूथ है इसलिए यूथ के सामने बोल रहा हूं। वो काम करने से क्या होगा, मेंटल इलनेस और बढ़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे आप फिजिकली अनफिट होते चले जाएंगे। इसलिए ये सारे जो हमारे मॉरल वैल्यूज है, अहिंसा करना, शांति धारण करना, जप करना, या जिसके भी अपने ईश्वर की आराधना करनी हो वो करे। दान नित्यम, मतलब थोड़ा सा देने का स्वभाव विकसित करना। देने का मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही देना नहीं होता, समाज को देना और देश को भी देना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ऐसे ही करके जब हम आध्यात्मिकता के साथ ऐसे आचार रसायन का सेवन करते हैं तो हम दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुण वय, अपनी प्रभा, वर्ण, स्वर, वाक सिद्धि और कांति जो लश्चर है, ये सब प्राप्त करते हैं। ऐसे आयुर्वेद के वांग्मय में अनेक सिद्धांत हैं जो आज ट्रेंड में है, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, ग्लोबल पॉपुलैरिटी बढ़ी है, दुनिया के स्कॉलर्स उस पर रिसर्च कर रहे हैं। आइए हम और आप भी ऐसे किसी एक विषय को, आयुर्वेद के या हर्बल मेडिसिन के किसी एक विषय को पकड़ करके और हम आगे कोई रिसर्च अनुसंधान अपने हाथ में लें और इसके माध्यम से देश और समाज की सेवा करें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा बिलीविंग अदर्स इज इजी बट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट्स द रियल चैलेंज। डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड एक्शन आर द रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द नेशन। जब इंटीग्रेटेड रिसर्च की बात करते हैं, दो अलग अलग साइंस के लोग एक साथ मिलकर के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और यूनाइटेड एक्शन चाहिए। और इसके बाद जो स्टीफन हॉकिंग्स का हम जो एक इमेज देख रहे हैं, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट, लेकिन फिजिकली जो है वो उनका अपीयरेंस इस तरह का था। तो उन्होंने कहा आई होप आई विल बी रिमेम्बर्ड फॉर माई वर्क नॉट फॉर थिंग्स लाइक अपीयरिंग ऑन द सेंसेस। जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा मुझे, उस कारण से लोग मुझे याद नहीं करेंगे, मुझे याद मेरे कार्य की वजह से, मैंने जो काम किया है उसकी वजह से करेंगे। और इस तरह से जो IQ EQ के साथ MQ लेवल पर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटीज को हम लोगों ने देखा, वैसा हम बनने की कोशिश करेंगे। तो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, हर्बल मेडिसिन हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन हेल्थ केयर। Herbal medicine has a long history, a natural approach and increasing scientific backing, which positions it to play a major role in improving health and well-being for future generations. ये तो कंक्लूजन था। गूगल बाबा ने जो मुझे AI जनरेटेड स्लाइड्स दी थी उसका, मेरा कंक्लूजन तो ये है, जिंदगी के रंगमंच पे अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आपने इतना गिरा दिया था, जाने दीजिए। ऐसा है किसी को? ठीक है, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल निपनिया में है, यहाँ से ठीक 8-10 किलोमीटर पड़ता होगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, भगवान करे, लेकिन यदि हो तो वहाँ पर भी मैं पाया जाता हूँ। हाँ,
कोविड में हमने कई मरीजों को HRCT 23-24 हो गया था, फाइब्रोज लंग्स हो गए थे, रस औषधियों का प्रयोग किया, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत या चांदी की भस्म, दैट नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी जो आप लोगों ने सुना है, ना जाना भी रोशन ना जाना भी दूषण। इसलिए कभी कभी ये परसेप्शन बन गया है, क्यों? क्योंकि हमने उसको वैलिडेट नहीं किया आज की भाषा में, लेकिन बहुत काम हो रहा है। और बड़े बड़े मेडिकल साइंस एम्स जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं वो आयुर्वेद के साथ कोलैब करके काम कर रहे हैं। वो क्या है, जब तक शास्त्र में लिखा है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए भारत सरकार ने नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसलिए नेशनल प्रोग्राम हमारी ड्यूटी है, जो प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया है वही हमको पालन करना, वही पालन करना चाहिए, हम सब वही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, राजयक्ष्मा और सोच के लिए आयुर्वेद मानव में औषधियाँ नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन हैं, लंग्स प्रोटेक्टिव है, पल्मोनरी प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन वो क्या है कि प्रोटोकॉल्स में नहीं आई है। रिसर्चेस होने दीजिए, अपकमिंग डेज में यही तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर में सब होगा। मलेरिया की दवाइयाँ खूब है हमारे यहाँ, रस औषधियाँ, जयमंगल रस खिला दीजिए, मलेरिया आसपास भी नहीं भटकेगा, थोड़ी महंगी है लेकिन स्वर्ण भस्म है उसमें, है ना। रात बाद चिंतामणि रस खिला दीजिए, एक डोज में पेन कमर का कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं। हाँ, डिजीज की कंडीशंस होती है, साध्य असाध्य। तो जब तक साध्य डिजीज है तो इजीली क्योरेबल है, असाध्यता अवस्था में चला गया तो थोड़ा सा टफ है, तो टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, असाध्यता में चला गया, कैंसर 4th स्टेज में चला गया, तो वो भी नहीं बचा पाते, हम भी नहीं बचा पाते। ठीक है, वायरस आजकल आ रहे हैं, जैसे कोविड का एग्जाम्पल आपने दिया, तो उस टाइम में इम्यूनिटी बूस्टर्स का काम किया जो आपने बताया सारी चीज़ें, लेकिन वैक्सीन और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एलोपैथी की तरफ से ही हुई। व्याधि क्षमत्व बोलते हैं, व्याधि बल प्रतिरोधकत्व। ऐसी ढेर मेडिसिन हैं जो केवल, ऐसा नहीं केवल उन्होंने किया, वो इसलिए है कि देखिए पिछले 200-300 सालों में राजाश्रय प्राप्त होने के कारण सारी फ्रेटर्निटी, सारी फैकल्टी उनके आसपास है। और दूसरा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जब जान जोखिम में है तो पहले जान बचाना है ना, कि आपको अपना एक्सपेरिमेंट करना। आने दीजिए, समय निश्चित रहिए आप, आगे आने वाले 10, 20, 25 सालों के बाद ये सिनेरियो और अच्छे से बदलते हुए आप देखिए, मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ, आप तो 20-25 साल अभी रहेंगे। सर कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें मतलब इमीडिएट एक्शंस लेना होता है, वो केस में इसमें सर आयुर्वेद का कोई रोल? देखो भैया, इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी कंडीशन में जान बचाओ, बहुत आयुर्वेद के चक्कर में अभी नहीं पड़ो, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जाओ तो वेंटिलेटर नहीं है ना, लेकिन वेंटिलेटर is not discovered by any allopathy doctors. X-ray is was not discovered by any allopathy doctors. ECG किसी एलोपैथी डॉक्टर्स ने नहीं बनाई, किसने बनाई? इंजीनियर्स ने बनाई, साइंटिस्ट ने बनाई। वो एडॉप्टेशन है, धीरे धीरे एडॉप्ट हो रहा है। हमारे यहाँ भी डिलीवरी सिस्टम शुरू हो गया है, हमारे यहाँ भी एक्सरे, पैथोलॉजी, ये सब हो गया काम शुरू, लेकिन समय लगेगा। जैसे जैसे सारे इक्विपमेंट्स हमको मिलेंगे, फिर देखना आचार्य सुश्रुत ने कितने साल पहले प्लास्टिक सर्जरी करी, मालूम है आपको? गणेश जी का शीश कैसे बना, गणेश चतुर्थी आने वाली ना, तो सर्जरी किसने की? किसी ने तो की होगी। ये समय दीजिए थोड़ा, और इस पे आगे आने वाले समय में काम करें थोड़ा। बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप, तो 5 महाभूतों से ये बना है। वायु के कारण गमन होता है, जितनी भी सर्कुलेशन है हमारे शरीर के अंदर, और पित्त के कारण जितना डाइजेशन है, जो हमारा चयापचय मेटाबॉलिज्म है, जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो, और कफ के कारण सारे फ्लूइड्स हैं, जल महाभूत, यही सब मिलकर के शरीर बना है, सारे सिस्टम बने हैं, ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन सिस्टम बना है, सब वर्कआउट करते हैं तो व्यक्ति जिंदा है। तो सर एक ही इंसान के अंदर ही सब होते हैं जो दोष हैं, दोष धातु मना मूलम ही शरीरम, एक ही शरीर में वात पित्त कफ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और स्वेद पुरीश और मूत्र, ये एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स हैं सबके पास होते हैं। वो जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो व्यक्ति हेल्दी होता है,
जब इनका स्टेट बैलेंस बिगड़ता है तो व्यक्ति अनहेल्दी हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे मन में एक सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब। हाँ यस सर, तो आवाज आ रही? आ रही है जी। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बताया आपका और वेद के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट किया है। हमारे मन में एक सवाल है कि हमने अनुभव ये किया है कि आजकल बच्चे हैं इस तरह के, उनके IQ लेवल बहुत तेज रहता है, लेकिन मानसिक रूप से मतलब बहुत कमज़ोर रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में मतलब टूट जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जनरली ये देखा गया। तो ऐसा सर क्या आउटवेज में ऐसा कुछ प्रावधान है जिससे बच्चों को शुरुआत से ही मतलब जो मानसिक जो लेवल इसमें स्ट्रॉन्ग किया जाए, कभी जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो टूटे ना, बल्कि परिस्थिति का सतर्क होकर सामना करें। तो आयुर्वेद में यदि ऐसा कुछ हो जिससे उसके प्रकार जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू आपके अप्रिसिएशन के लिए। आपने पूछा बहुत अच्छा है। बाल्यावस्था में जन्म से ही शिशु को हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन कराते हैं। जन्म से ही 16 वर्षों तक स्वर्ण प्राशन हमारे आयुर्वेद कॉलेज में 16 वर्ष की आयु के पूर्व तक प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन या स्वर्ण की एक विशेष बूंदे हैं बना के, वो मेडिकेटेड ड्रॉप्स हैं, वो दिए जाते हैं। उससे व्यक्ति का मानसिक शारीरिक संपूर्ण विकास बहुत अच्छा होता है और यह जितना जल्दी दिया जा सके, एकदम इमीडिएट आफ्टर बर्थ। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ आयुर्वेद में पीडियाट्रिशियंस नहीं होते हैं, उनका कंसर्न लेकर के यदि जन्म से ही इमीडिएट आफ्टर बर्थ स्वर्ण प्राशन हम कराते हैं, जन्म के पहले वर्ष में ही यदि करा लेते हैं और तो व्यक्ति बहुत, जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। उसको सामान्य रूप से होने वाली जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो आए दिन सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि पेट खराब वगैरह होता है, उसके चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। एक तो ये। दूसरा, आप देखिए बच्चों को शुरू में ही आप जो फूड हैबिट्स हैं वो थोड़ा चेंज करिए। उनको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, थोड़ा सा रिड्यूस करिए। आजकल कई ऐसे प्रिपरेशन भी आ गए, जैसे उनको कुरकुरे बहुत पसंद है, वो हार्मफुल है, लेकिन मूंग दाल के पापड़ और उसके कुकीज़ वगैरह कुछ आजकल मार्केट्स में आ रहे हैं, हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। स्मॉल मिलेट्स के, जैसे हमको बच्चों को पसंद है उपमा और ये सब चीज़ें पसंद है, तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। लेकिन हैबिट है अगर कोई उसको जंक फूड खाने की, तो स्मॉल मिलेट्स के बहुत सारे प्रिपरेशंस है। रागी है, कोदो है और जई है, ओट्स बहुत अच्छा। तो इस तरह के उसके फूड मटेरियल से हम उसकी फूड हैबिट्स को रिप्लेस करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा ग्रोथ हो तो थोड़ा सा उनको योग है, एक्सरसाइज है, इसके बारे में बताना, तो मुझे लगता है कि उसके डेवलपमेंट में जैसा हम चाहते हैं वैसा डेवलपमेंट होता है। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आयुर्वेद के जरिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं इस समय जुलॉजी में जो नए सिलेबस आए हैं, इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम ऐड किया गया है, तो आपका निश्चित तौर पे आपको जो आयुर्वेद से संबंधित जो आपका प्रेजेंटेशन है हम लोग काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। और धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि आगे भी आपको जो PPT है प्रेजेंटेशन जो है उसके टॉप का भी शेयर हो जाए हम लोगों के लिए, तो काफ़ी मदद मिलेगी हम लोगों को इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाने के लिए। साथ साथ ऑलरेडी PPT जो है वो जमा कर दी है सर। थैंक यू सो मच।